وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ تقریباً ایسی ہی صورتحال سے خود بھی میں دوچار ہو چکی تھی، اور بعض اوقات آدمی کسی پر مکمل بھروسہ کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی بات بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اور کچھ معاملات میں انتہائی قربت کے باوجود احرص سے رازداری برتنا پڑی تھی، اور اس کے علاوہ نثار کو بھی میں نے پہاڑوں سے اتر کر ہموار میدانوں کی طرف آنے کی اصل وجہ نہیں بتائی تھی، اور کچھ باتیں یقیناً ہی ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہیں، اور میں نے اسی لیے ارشاد حسین پر اس سلسلے میں مزید دباؤ نہیں ڈالا، اور اس سے بولی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ویسے تو سوالوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن فی الحال چند باتوں کا جواب دے ہی دیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، اور یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا ہے، آپ مجھے شک کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تو عرض کروں۔ اور اس نے اپنی خمار آلود آنکھوں سے جیب سے رومال نکال کر صاف کی۔ اگر آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے میں بھی عہد شکنی کی مرتکب نہ ہوئی تو جواب ضرور دوں گی، میں معنی خیز لہجے میں بولی۔ وہ میری بات سن کر دھیرے سے ہنس پڑا، اور آپ نے خود میرے ہی الفاظ بڑی خوبصورتی سے مجھے لوٹا دیے۔ خیر، کوئی سوال کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اب تک اپنے ذرائع سے مجھے آپ کے متعلق کیا کیا معلوم ہو چکا ہے، ضرور بتائیے تاکہ میری معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اور میں نے اس پر فکرہ چست کیا، اور فکرے بازی کی یہ عادت احرص ہی کی دین تھی۔ آپ تو خاصی زندہ دل بھی ہیں۔ اور وہ پھر ہنسا۔ جی ارشاد ہو، میں نے اس کے نام کی رائے سے فائدہ اٹھایا۔ عرض کرتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا، کہ آپ نے اپنے بارے میں اب تک یہی ظاہر کیا ہے کہ آپ کا تعلق حیدرآباد دکن کے شاہی خاندان سے ہے، اور معاف کیجیے گا مجھے اس پر شک ہے، اور میرا پہلا سوال یہی ہے کہ اس افواہ میں کہاں تک صداقت ہے؟ آپ نے جب خود ہی اس افواہ قرار دے دیا ہے تو پھر صداقت کی تلاش کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی افواہ درست بھی ثابت ہو جاتی ہے، اس نے برجستہ کہا۔ تو پھر اس افواہ کو فی الحال درست ہی جانیے۔ فی الحال آپ سے کیا مراد ہے؟ کیا آئندہ اس افواہ میں کسی تبدیلی کا امکان ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے میں عہد شکنی کا خطرہ ہے، اس لیے معذرت۔ گڈ، وہ مسکرایا، اور سوال واپس۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ اور کبھی کبھی ریس کھیل لیتی ہوں۔ مزید سوال ابھی تشنع جواب ہے، اور ریس کھیل کر ہرگز اتنی آمدنی نہیں ہو سکتی کہ کوئی فرد 5 افراد کو ملازم رکھ سکے، اور دوم یہ کہ اس عرصے میں آپ کو کبھی ریس کورس کا رخ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سوم یہ کہ اب ادھر کا رخ کروں گی تو آپ کو بھی ساتھ لے لوں گی۔ اور میں اس کی بات کاٹ کر بولی، ابھی ارشاد حسین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہی بنگالی ہندو نوجوان دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جو مجھے لے کر وہاں آیا تھا، اور اس نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ ارشاد حسین ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس بنگالی ہندو نوجوان نے اطلاع دی کہ جس عمارت میں تھی اسے پولیس نے گھیر لیا ہے، اور اچانک ارشاد حسین نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ اور پھر وہ اپنے دوست یا ساتھی سے مخاطب ہوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسلحہ یہاں سے کل ہی ہٹا دیا گیا تھا، اور ہمارے بعد تم بھی یہاں سے نکل جانا، علی احمد سے کہنا یہی رہے۔ اور اس کے بعد ارشاد حسین میرا ہاتھ تھامے اسی کمرے سے ملحق برابر والے کمرے میں آ گیا، اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد حسین میرا ہاتھ تھامے اسی کمرے سے ملحق برابر والے کمرے میں آ گیا، اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ ایک الماری رکھی ہوئی تھی، اور وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف لپکا، اور لکڑی کی وہ قد آدم الماری غالباً خالی تھی،
اور ارشاد حسین اسی لیے الماری کو بآسانی اس کی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا اور میں اس کی حرکات و سکنات کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ الماری کے ہٹتے ہی مجھے ایک دروازہ نظر آ گیا جو اندر کی طرف کھلتا تھا، اور ارشاد حسین نے میری طرف مڑ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور دروازہ کھول لیا۔ دروازے کے باہر نیم تاریکی سی نظر آئی اور میں آگے بڑھ کر دروازے تک پہنچی اور ارشاد حسین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ عمارت سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ تھا اور کسی ایسے ہی آڑے وقت پر اسے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ گزشتہ روز تک اس عمارت میں اسلحہ بھی تھا اور یہ اطلاع بھی میرے لیے معنی خیز تھی، مگر یہ وقت ان باتوں پر غور کرنے کا نہیں تھا، اور ارشاد حسین نے باہر نکلتے ہی دروازہ بھیج دیا۔ ذرا چوکنا رہیے گا، ادھر بھی پالتو کتے ہو سکتے ہیں، ارشاد حسین نے سرگوشی کی، اور پیڑوں کا وہ ایک جھنڈ تھا جہاں میں ارشاد حسین کے ساتھ کھڑی تھی، اور عمارت سے نکل کر ہم اسی جھنڈ میں پہنچے، اور یہ اس عمارت کا عقبی حصہ تھا، اور ارشاد حسین مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا اور پھر چند ہی قدم چل کر رکا، اور وہ کوئی باغ معلوم ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ ادھر بھی موجود ہیں، ارشاد حسین کے لہجے سے فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا، اور میں نے بھی کچھ آگے بڑھ کر درختوں کے درمیان سے جھانکا۔ کچھ ہی فاصلے پر دو مسلح باوردی پولیس والے مجھے کھڑے دکھائی دیے، اور وہ دونوں اسی جھنڈ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس عمارت کے عقبی حصے کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا۔ انہیں شاید اس عمارت کے خفیہ عقبی دروازے کا علم نہیں تھا، ورنہ جھنڈ میں گھس کر دروازے تک پہنچ گئے ہوتے، اور یہ محض احتیاطی تدابیر لگتی تھی کہ کوئی شخص عقبی سمت سے فرار نہ ہو سکے۔ سورج اب ڈوب چکا تھا اور دھیرے دھیرے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں ارشاد حسین کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید فکر مند نہ ہوتا، اور اس کا تعلق تو خفیہ پولیس سے تھا۔ اس کے پاس محکمے سے جاری کردہ شناختی کارڈ بھی تھا، اور پھر اسے پولیس والوں سے کیا خوف ہوتا؟ وہ کوئی پرانا اور متروک باغ معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہاں ان دونوں پولیس والوں کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا، اور جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور جھاڑ جھنکار بھی دکھائی دے رہا تھا، اور صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اس جھنڈ سے نکل کر پولیس والوں کی نظروں میں آئے بغیر کسی طرف جانا ناممکن تھا، اور وہیں چھپے رہ کر تاریکی پھیلنے کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پولیس اس عمارت میں داخل ہو کر جلد ہی عقبی خفیہ دروازے کا سراغ لگا لیتی، اور پھر ہم ہر دو طرف سے گھر کے رہ جاتے، اور میرے ذہن نے جلد ہی صورتحال کی نزاکت کا اندازہ لگا لیا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا، اور میں اسی پر عمل کرنے والی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارشاد حسین کی سرسراتی ہوئی آواز سی میں نے سنی۔ دیکھتے جائیں، آپ کو میں نے اس مشکل میں پھنسایا ہے تو اس سے نکالنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور میں نے جھک کر دوسرا پتھر اٹھا لیا، اور ایک پتھر میں پہلے ہی اٹھا چکی تھی۔ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، خطرے کی بو پرسوں ہی ہم نے سونگھ لی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی۔ ارے ارے، اور پھر ارشاد حسین ارے ارے کرتا ہی رہ گیا، اور مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ میں کر گزری، اور مجھے اپنے نشانے پر بھروسہ تھا۔ چند لمحوں کے فرق سے میرے پھینکے ہوئے پتھر یکے بعد دیگرے ان دونوں پولیس والوں کی کمپنیوں پر پڑے، اور وہ آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گئے۔ کمال ہے، ارشاد حسین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، نکل چلے اب یہاں سے۔ اور ذرا ہی دیر بعد ہم اس پرانے باغ سے نکل کر مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے نہ جانے کدھر نکل آئے۔ اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میری حیرت کا سبب چیتے کا ایک بچہ تھا جو ایک دکان کے سامنے لوہے کی زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ ہم چڑی ماروں کے محلے سے گزر رہے ہیں، ارشاد حسین نے جواب دیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور جواب بھی میری طرف دیکھ کر نہیں دیا تھا، اور وہ اس طرح میرے ساتھ چل رہا تھا جیسے کوئی راہگیر ہو، اور میں اس احتیاط کا سبب سمجھ رہی تھی۔ اور پھر ارشاد حسین نے مجھے اس علاقے کے بارے میں مزید بتایا کہ نواب واجد علی شاہ کے زمانے سے ہی وہاں چڑی ماروں کی آبادی تھی۔ وہاں ہندوستان کے مختلف حصوں کے لوگ آباد تھے، اور یہ لوگ معمولی پرندوں سے لے کر ہر طرح کے جانور، یہاں تک کہ درندوں کے بچے بھی پالتے اور فروخت کرتے۔ اس کے بعد نہ ارشاد حسین کچھ بولا اور نہ میں نے اس سے کچھ دریافت کیا، اور میری اور اس کی گفتگو ادھوری ہی رہ گئی، اس لیے کہ وہ مجھے اپنا ایک اور ٹھکانے پر لے آیا، اور وہ علاقہ دھان کھیتی کہلاتا تھا،
और मदरसा इस्लामिया के अकब में एक गली के अंदर वो छोटा सा मकान था। उस मकान में मेरे और अरशाद हुसैन के सिवा कोई और नहीं था। मकान का मुतकफल दरवाज़ा अरशाद हुसैन ने मेरे सामने खोला और उस मकान में 2 कमरे और एक सहन था, और वो मुझे एक कमरे में ले आया और लालटेन जलाकर एक तरफ रख दी। ये जगह महफूज है, आप इत्मीनान से बैठें और मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। अरशाद हुसैन बोला, और बाकी बातें बाद में होंगी। हाँ, तो हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि आपका ज़रिया मुआश रेस खेलना है, और आपने उस पर यकीन नहीं किया, इसलिए कि आपके साथियों ने मुझे रेस कोर्स में नहीं देखा, और ये कि रेस खेल कर इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि मैं पूरी साइश ज़िंदगी गुजार सकूं, और उस पर मैंने किसी रोज़ आपको साथ चलने की दावत दी थी, और फिर इससे पहले कि आप मेरी दावत कबूल करते पुलिस का छापा पड़ गया। और ये अरशाद फरमाइए कि ये असले का क्या चक्कर है कि आप और आपके साथी अंग्रेज़ों के खिलाफ मसला जद्दोजहद का इरादा रखते हैं। ये तो आप एक बार फिर मेरा ही इंटरव्यू लेने लगी। वो मुस्कुराया। अगर कोई अहद माने है तो मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैंने उसे राय दी। ये बातें वक़्त आने पर खुद आपके इल्म में आ जाएंगी, और अभी वो वक़्त नहीं आया। अभी हो सकता है कि वो मैंने खेद लहजे में बोला, उसका इन्हिसार आपकी रजामंदी पर है। कैसी रजामंदी? अंग्रेज़ों के खिलाफ आप हमारा साथ दे सकती हैं या नहीं? मैं अगर आपके सवाल का जवाब रजामंदी की सूरत में भी दूं तो शायद उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपने किस तरह समझ लिया? हर फर्द अपने बारे में बेहतर तौर पर जान सकता है, और मुझे अपने मुतल्लिक़ कोई गलतफहमी नहीं, मगर मुझे और मेरे साथियों का यकीन है कि आप हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं। उसका बराह रास्त तजर्बा खुद मुझे कुछ देर पहले हो चुका है, और आपकी जगह अगर कोई और इस तरह फंस गया होता तो इतनी आसानी से ना बच निकलता। तो आप लोग मुझे फंसवाना चाहते हैं, मैंने हंस कर कहा। और फिर उसी वक्त मुझे एक ख्याल आया, और अरशाद हुसैन का ताल्लुक खुफिया पुलिस के महकमे से था, और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो भी मेरे लिए कारआमद हो सकता था। और यही सोचकर आप अपनी बात के जवाब से पहले मैं फिर बेल उठी। मेकअप करना तो आता होगा आपको, और मेरी मुराद भेस बदलने से है। जी हाँ, मैंने इसकी तरबियत ली है, और मुझे सिखा सकते हैं आप? मैंने कुछ सोचते हुए सवाल किया। मगर इसमें खासा वक्त लगेगा। मगर आप क्यों सीखना चाहती हैं? आपके महकमे के करम फरमायों से बचने के लिए, मैंने जवाब दिया। आप अगर रजामंदी का इजहार कर देती तो शायद मैं भी आपको यही मशवरा देता, मगर इस वक्त जब मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाते, और इन सवालों का अब सब्र ही कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मैं फ़िलहाल जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। और फिर तो आपकी रजामंदी भी हमारे लिए बेमैनी है। उसका लहजा बुढ़ सा गया। वो क्यों? हम किसी को भी उस वक्त तक अपना साथी नहीं बनाते जब तक उसके मुतल्लिक़ हमें सब कुछ मालूम ना हो। फिर तो मजबूरी है। हर चंद के मेरा और आपके दुश्मन एक हैं, मगर हम एक नहीं हो सकते। और मैंने कहा, बहरहाल मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे खतरा से आगाह किया, और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। ये तो कोई बात ना हुई। आखिर आप अपने बारे में कुछ बताते हुए इतनी राजदारी से क्यों काम ले रही हैं? इसलिए कि मुझे खुद भी अपने मुतल्लिक़ इल्म नहीं कि मैं कौन हूँ, और ये बात पहले मैंने इसलिए नहीं बताई कि शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना करना पड़े। आप बहुत अजीब सी बात कह रही हैं, अजीब और नाकाबिल यकीन, और मेरी साफ गोई को माफ़ कर दीजिएगा। आपके यकीन करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत वही है जो मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ। मैं आपकी बात से सिर्फ यही नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि किसी सबब अपने मुतल्लिक़ कुछ बताने से गुरेज कर रही हैं, और अगर इसी तरह आप मुतमिन हो सकते हैं तो फिर यही सही। और मुझे एतराफ़ है कि आपकी शख्सियत ने मुझे मुतासर किया, और ज़ाती सीता पर अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। मसलन आपने मेकअप सीखने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, और तो मैं इस ख्वाहिश का एहतराम कर सकता हूँ, मगर उसके लिए आपको खुद ही जहमत करना पड़ेगी। यानी क्या मुझे यहाँ आना पड़ेगा? नहीं, वो जवाब में बोला। यहाँ क्यों? कि मेरा घर भी है, इसलिए ये मुनासिब नहीं रहेगा। फिर कहाँ? मालूम नहीं आपने वो इलाका देखा भी होगा या नहीं। वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, और फिर खुद ही ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, ये हो सकता है कि अनिल चौधरी वहाँ तक एक मर्तबा आपकी रहनुमाई कर दे। और अनिल चौधरी वही मेरा बंगाली हिंदू दोस्त है जिसके तो आंखों में आप यहाँ तक पहुँची थीं।
तो फिर कब आपसे मुलाकात हो सकेगी? मैंने दरियाफ्त किया। मेरा सवाल सुनकर कुछ देर वो खामोश रहा और फिर बताया। मेरा सवाल सुनकर कुछ देर वो खामोश रहा और फिर बताया कि परसों शाम 5 और 6 के दरमियान अनिल चौधरी आपको आज ही की तरह एडन गार्डन में मिल जाएगा और मुझे उसका ताक़ुब करना होगा। जी हाँ, कहाँ तक? फिलहाल ये ना पूछे इसलिए कि अभी उस सिलसिले में कुछ सोचा नहीं और मैं समझी कि शायद अभी तक आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ऐसा नहीं है। वो खासी देर के बाद मुस्कुराया। अगर भरोसा ना होता तो मिलने का वादा ही क्यों करता? और इस वक्त मैं चाय पी चुकी थी और अब मैं चलूं? मैंने चाय का कप दूसरी करीबी कुर्सी पर रखते हुए कहा। आपके लिए इलाका गालबन नया है, इसलिए बस स्टॉप तक मेरा ताक़ुब करना होगा। मंजूर है। चले, आपने कुछ मतो मंजूर किया। वो आहिस्ता से हंसा और मैंने भी उसका साथ दिया। मटिया बर्ड से धर्मतले तक वापस आते हुए मैं अरशाद हुसैनी के बारे में सोच रही थी और उसका खरापन मुझे पसंद आया और उसने कोई लगी लिपटी नहीं रखी और जो उसके दिल में था वही जुबान पर था और कम से कम मैंने यही महसूस किया। उस रात मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो मुस्तकबल की सोच बचार ने मेरी नींद उड़ा दी और नए सिरे से इस शहर में ज़िंदगी बसर करना इतना आसान नहीं था। मुस्तकिल सुकूनत के लिए फिर से कोई जगह तलाश करना पड़ती और इस कोठी से कहीं और सामान की मुंतकली भी एक मसला था। और तमाम सामान में सबसे ज़्यादा अजीज़ मुझे मेरी किताबें थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से जमा की थी और किताबों से मुझे अब मोहब्बत सी हो गई थी। और यही किताबें तो थीं जिन्होंने मुझ पर ज़िंदगी के नए राज खोले और मुझे आगाही की नई दुनियाओं का सफ़र कराया। मेरे पास इतनी रकम बहरहाल थी कि मैं अपनी सकूनत के लिए कोई और कोठी या मकान खरीद लेती, मगर उसके लिए शहजाद को एतमाद में लेना भी ज़रूरी था क्योंकि ये कोठी भी बेचना पड़ती। और देर तक मैं इन्हीं ख्यालात में खोई रही और फिर आइंदा रोज़ के लिए कुछ फैसले करके सो गई। मालूम नहीं वो रात का कौन सा पहर था कि मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी ख्वाबगाह में हल्का नीला बल्ब जलाकर सोई थी। मगर इस वक्त अंधेरा था और मेरे ज़हन में खतरे की घंटियां सी बजने लगी। मैंने उठना चाहा तो मेरे जिस्म को झटका सा लगा। उसी के साथ मेरे अंदर अंधेरे में देखने की कुव्वत बेदार हो गई और मैं चौंक उठी। वो मेरी ख्वाबगाह नहीं, एक छोटी सी कोठरी थी जिसके अंदर मैं एक चारपाई से बंधी पड़ी थी और कोठरी का दरवाज़ा बंद था। दम घुटने का एहसास अब कम हो चुका था लेकिन मैं चकरा कर रह गई। मैं अपनी ख्वाबगाह में सोई थी तो फिर वहां कैसे पहुंच गई और मुझे इस जगह कौन और किस तरह लाया और सोते सोते आखिर मेरा दम क्यों घुटने लगा और ये कि मेरी आंख पहले नहीं खुली। क्या मुझे बेहोश कर दिया गया था और मेरे ज़हन में मुतअद्दिद सवालात गर्दिश कर रहे थे। मैं उस कोठरी का जायजा लेने लगी। जे देवी माई, अचानक मेरी समाज से शबू की आशना आवाज़ टकराई और तुझे मैंने जगाया है देवी, वरना तू सोती ही रहती। और उस वक़्त ना जाने क्यों वह दकी किस्म के हिंदी बोलने से ग्रेज कर रहा था और कोठरी में मेरे सिवा कोई नहीं था, मगर यूँ लग रहा था जैसे वो शैतान सिफत साधु मेरे सामने ही खड़ा मुझसे बात कर रहा है। और देवी, तेरी खातर बड़ा गोश्त भूगा है परंतु जी नहीं हारा और जैसे ही मेरी सज़ा पूरी हो गई मैं तुझे यहाँ उठा लाया और अगर मैं ऐसा ना करता तो 3 रोज़ के बाद बड़े महाराज तुझे अपने चरणों में बुला लेते और मैं फिर प्यासे का प्यासा रह जाता। ये मेरी सौभाग्य है कि बड़े महाराज बरद्वान हो गए हैं और परसों लौटेंगे और तब तक तू मेरे लिए मेहमान रहेगी और उसके बाद मैं ये शहर ही छोड़ जाऊंगा, पर अकेले नहीं, तू भी जोगन बनी मेरे साथ होगी। यहाँ रहा तो बड़े महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरा इंतज़ार कर देवी, मैं बहुत जल्द तेरे पास आ रहा हूँ और अपने इस प्रेम पुजारी को प्रेम की बख्शा ज़रूर देना। और इन अल्फाज के साथ ही शबू की आवाज़ मालूम हो गई। मेरे तन बदन में आग सी लग गई और सारे जिस्म में शोले से लपकने लगे और मैंने अपने अंदर बला की कुव्वत महसूस की और मेरे वजूद में ख्वाबीदा एक और पुरअसरार कुव्वत बेदार हो चुकी थी जिसका तजर्बा मुझे पहले भी हो चुका था। और फिर मैंने एक ही झटके से अपने जिस्म से लिपटी हुई मजबूत रस्सियां तोड़ दी और उछल कर खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने कोठरी के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और एक रोशन हिसार मेरे गिर्द कायम हो गया और मुझे अपना वजूद उस हिसार में गर्दिश करता हुआ महसूस हुआ और मैं चकरा कर फर्श पर गिर पड़ी।
मेरे वजूद में भड़कते हुए शोले एकदम सर्द हो गए और शबू यकीनन मेरी तरफ से गाफिल नहीं था, वरना शायद मैं वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती। तू अपने पुजारी को छोड़कर कहाँ जा रही थी देवी माई? और शबू की आवाज़ मैंने फिर सुनी और मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई और मेरे गिर्द कायम होने वाला रोशन हिसार उसी की शैतानी कुव्वतों का कमाल मालूम होता था। कमीने, तू शायद इस तरह ये समझ रहा है कि मुझे बेबस कर देगा। मैं पूरी कुव्वत से चीख उठी और जवाब में वो जोर से हंसा और फिर चंद ही लम्हे बाद कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। शबू एक लाल टैन लिए अंदर दाखिल हो रहा था और मुझे उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों की जगह अंगारे से दहकते दिखाई दे रहे थे। अरे अरे, ये तू जमीन पर क्यों पड़ी है? देवी, उठ और खाट पर लेट जा, वरना तेरा नाजुक जिस्म दुख जाएगा। और उसके स्याह भद्दे और मोटे होंठ हिले और फिर उसने अपना दायां हाथ बुलंद करके मेरे ऊपर नजरें गाड़ दी। मेरा जिस्म जैसे खुद ब खुद फिजा में बुलंद होता गया और फिर चारपाई पर आ रहा और रोशन हिसार अब भी मौजूद था। देखो शबू, तू मुझे अपने ये करतब दिखाकर हरगिज मारूब नहीं कर सकता, मैं हकारत भरे लहजे में बोली और उसने लाल टैन फर्श पर रख दी और कोठरी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मेरी तरफ पलटा। देवी, उसने नरम लहजे में मुझे मुखातब किया, ये तो बता दे कि तू अपने इस पुजारी से इतनी नाराज़ क्यों है? देख ले कि तेरी खातर मैं तेरी ही ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। और इसकी तेज़ नज़र मुझे अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई और वो चंद कदम और आगे बढ़ आया और मैंने ख़ास तौर पर एक बात महसूस की कि वो रोशन हिसार से दूर ही दूर रहना चाहता था। और जब वो कोठरी में दाखिल हुआ उस वक़्त भी हिसार से दूर ही रुक गया और अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए मैंने उससे कहा, करीब आने से क्यों डर रहा है? और इसलिए देवी के इस हिसार में तुझे मैंने ही कैद किया है और ना तू इससे बाहर आ सकती है और ना मैं इसमें दाखिल हो सकता हूँ। और अगर मैंने ये गलती की तो जल जाऊँगा और सो मैं जल गया तो फिर तुझे कौन जलाएगा? और मुझे खबर है कि तू मेरी ही सूरत से जलती है, जाने क्यों। शबू से ये सुनकर मुझे कदरे इत्मीनान हुआ कि हिसार की मौजूदगी में वो मेरे करीब नहीं आ सकता और मैं अगर मजबूर थी तो वो भी पूरी तरह मुख्तार नहीं था कि अपनी मनमानी कर सकता। और वो मुझसे क्या चाहता था? उसकी गैर शाइस्ता और नाजीबा हरकतों से मैं पहले ही जान चुकी थी कि मैं अगर चाहूँ देवी तू ये हिसार तंग होते होते तेरे शरीर को छू ले, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि पलक झपकते तेरे यह सुंदर बदन जलकर राख बन जाएगा। सो देवी, ऐसा करके राजी हो जा और ये तेरे ही फायदे की बात है, वरना एक बार तू बड़े महाराज के हत्थे चढ़ गई तो जीवन भर तुझे उन्हीं की दासी बनकर रहना पड़ेगा और तू अपने आप भूल जाएगी कि तुझे याद नहीं रहेगा कि तू कौन थी। जिस्म शल होने के बावजूद मेरे पांचों हवास काम कर रहे थे और मैं बोलने पर भी कादर थी और सुन भी रही थी। इसके अलावा मेरा जहन भी पूरी तरह काम कर रहा था और मेरे हसूल की खातर यकीनन शबू बड़े महाराज से बगावत करने पर आमादा हो गया था और मैं उसे फ़ायदा उठा सकती थी। मुझे मालूम था कि मर्द चाहे कितना ही अय्यार क्यों ना हो, औरत अगर चाहे तो उसे शीशे में उतार सकती है। और मुझे शबू और अपनी मजबूरी का एहसास हो गया और शबू की मजबूरी ये थी कि वो मेरी आमादगी के बगैर करीब नहीं आ सकता था और मेरी आमादगी के बाद हिसार ख़त्म हो जाता। और मेरी मजबूरी ये थी कि उस हिसार में कैद होने के बाद मेरे अंदर छुपी हुई हैरत अंगेज़ पुरअसरार कुव्वतें वक्ती तौर पर कार आमद नहीं हो रही थीं। वो हिसार मेरे गिर्द उसी गर्ज से खींचा भी गया और मेरा ख्याल में दरमियानी कड़ी होने के बावजूद शबू बहुत कुछ जानता था और अगर मैं उसे किसी तरह शीशे में उतार कर उसकी ज़ुबान खुलवाने में कामयाब हो जाती तो मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते थे। इन तमाम सवालों में सबसे अहम सवाल सयान के बारे में था और मुझे फरेबे नज़र में मुबतला करने के लिए आखिर उसने मेरे दुश्मन ही का चेहरा क्यों दिखाया। और शबू यकीनन इस सवाल का जवाब दे सकता था और मुझे राह पर लाने के लिए अब वो धमकियों पर उतर आया, लेकिन मैं पुरयकीन थी कि वो उन धमकियों पर हरगिज़ अमल नहीं करेगा और उसके बावजूद मैंने मसलतन अपना रवैया बदल दिया। शबू, क्या तू वाकई मेरा पुजारी है? मैंने उसे नरम लहजे में मुखातब किया और अब मेरा लहजा बदला हुआ था। उसने चौंक कर यूं मेरी तरफ देखा जैसे कुछ सुना ना हो, उस पर यकीन ना हो। बोल ना शबू, आखिर चुप क्यों है? और मेरे लहजे में मिठास थी। हाँ देवी, मैं तुझे चाहता हूँ,
इतना कि अपने गुरु की भी मैंने परवाह नहीं की और उसके मोटे स्याह होंठ जैसे खुद ब खुद हिलने लगे। फिर तुम मुझे जला डालने की धमकियां क्यों देता है, और क्या यही तेरी चाहत है? मैं और कहता भी क्या देवी कि तू किसी तरह पिघल ही नहीं रही थी, और अब भी मुझे विश्वास नहीं कि तू बदल गई है। तो फिर तुझे किस तरह मेरी बात का यकीन आएगा? बोल। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा, शायद वो कुछ सोच रहा था, और फिर मैंने उसे शैतानी अंदाज में मुस्कुराते देखा। उसने गालबन कोई राह निकाल ली थी। सुन देवी, उसने मुझे मुखातब किया, बज़ाहिर तुझे ये सिर्फ एक ही हिसार दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। बेइख्तियार मेरी निगाह चमकीले हिसार पर जम गई और मैंने गौर से देखा तो एक ही हिसार में मुझे कई रंग नजर आए, सुर्ख, सब्ज और स्याह। और ये 3 हिसार हैं। सुर्ख हिसार तुझे बाहर नहीं निकलने देगा, और तूने ये अगर कोशिश की भी तो खुद ही अपनी मौत को दावत देगी, वो बताने लगा। और स्याह हिसार तेरे अंदर मौजूद पुर इसरार कुव्वतों को बेदार नहीं होने देगा। और ये जो तू सब्ज हिसार देख रही है, उसने तेरे जिस्म को शल बना रखा है, तो मैं इसे उठा सकता हूँ, मगर उससे मुझे क्या फ़ायदा शबू? मैं तो फिर भी तेरे खींचे हुए 2 हिसारों के में कैद में रहूंगी। उस हिसार को उठाकर मुझे तेरे सच और झूठ का अंदाजा हो जाएगा। उसके होंठों पर अब भी शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, और जिसकी वजह समझने से मैं कासर थी। वो कैसे? मैंने सवाल किया। अभी मालूम हो जाएगा, देवी देखती रह। और ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ हिसार की तरफ किए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा जो मेरी समझ में ना आ सका। और चंद ही लम्हे बाद मुझे अपने जिस्म से कोई बोझ सा हटता महसूस हुआ और सब्ज हिसार गायब हो चुका था। हाँ मेरी देवी, शबू ने सिसकारी सी भरी। बोल, तू क्या कह रही थी? और मैं उठकर बैठ गई। टूटी हुई रस्सियां मेरे इर्द गिर्द पड़ी थीं, और अब मैं उस जिस्म को हरकत देने पर कादर थी। पहले मैं तुझसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, मैं संभल कर बोली। ये बता कि तू मुझे यहाँ किस तरह उठाकर ले आया? क्या तूने मुझे बेहोश कर दिया था? बस तुझे यही पूछना है देवी। वो हंस दिया। ज़ाहिरी बात है कि अगर बेहोश ना करता तो तेरी आंख ना खुलती। और ये कौन सा इलाका है? और मैं फिलहाल दानिस्ता ऐसे सवाल कर रही थी कि उसे जवाब देने की में इतराज़ ना हो। ये काली घाट है और यहाँ तू पहले भी आ चुकी है, उन दिनों जब तू मंदिरों के चक्कर काट रही थी। पर ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। मुझे ये बता कि तू राजी भी है या नहीं? और ये कहते हुए उसने बड़े नदीदा नज़रों से मेरी तरफ देखा, और जवाब में मैं शर्मा कर मैंने नज़रें झुका ली। उसे फरेब देने का सिर्फ यही एक रास्ता था, और मेरे करीब आने के लिए उसे बकिया दोनों हिसार भी उठाने पड़ते, और फिर मेरा मकसद पूरा हो जाता। वो मेरे मुकाबले का अहल नहीं, उसका तजर्बा मुझे कई बार हो चुका था, वरना राह फरार इख्तियार ना करता। लेकिन इस मर्तबा मैं उसे ये मौका नहीं देना चाहती थी। मैं समझ गया देवी। वो खुशी से तकरीबन चीख उठा। तो फिर बकिया दोनों हिसार भी उठा ले शबू, ताकि तेरे मेरे बीच कोई दीवार ना रहे। और मैंने उसकी तरफ मदहोश कुन नज़रों से देखा। उठा लूंगा देवी, वो जल्दी से बोला, मगर पहले मुझे यकीन तो कर लेने दो कि जो बात तेरी जुबान पर है दिल में भी है। दिलों का भेद किसने जाना है शबू? तू जान लेगा, इसलिए कि जो मैं कह रही हूँ उस पर यकीन कर ले, मैंने कहा, और फिर उसे मज़ीद मुतमिन करने के लिए कहने लगी। दरअसल मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है कि तेरी शक्ति मुझसे ज़्यादा है, और मैंने इसीलिए तेरी दासी बनकर बकिया जीवन बताने का फैसला किया है। नहीं, तू मेरी दासी नहीं देवी है, और मैं तेरा पुजारी हूँ, और मैं जीवन भर तेरी पूजा करूँगा अगर जिंदा बच गया। और मैंने दिल ही दिल में कहा। और शबू से ये सब कुछ कहते हुए मुझे अपने दिल पर बड़ा जबर करना पड़ा, मगर क्या करती, उसे धोखा तो देना ही था। एक मर्तबा मैं उसकी कैद से आज़ाद हो जाती तो फिर वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता था। अच्छा तो फिर पहले दर्शन करा दे, वो लह कर बोला, ताकि मेरे तेरी बातों पर मुझे यकीन आ जाए। और दर्शन? मैं चकरा गई। क्या मैं तुझे नज़र नहीं आ रही? देवी, ये देखना भी कोई देखना है। और फिर शबू ने जो कुछ कहा वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इंतहाई सब्र व तहम्मुल के बावजूद मुझे गुस्सा आ गया। हरामजादे, जलील कुत्ते! और मैं उस पर बरस पड़ी। तेरी ये मजाल की मुझसे इतनी कमीनगी का इजहार करे। खुल गई ना आखिरी तेरी चाल। वो जोर से हंस पड़ा। देवी, क्या तू शबू को इतना ही उल्लू समझ रही थी कि तेरे चलतर में आ जाएगा? और मैं खून का घूंट पीकर रह गई। वो इतना ही बड़ा कमीना और शैतान था कि मैं उसे फरेब देने में नाकाम रही। सुन ए देवी, जिस तरह मैं तुझे तेरी कोठी से यहाँ उठा लाया हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सका, इसी तरह तुझे इस शहर से निकाल कर ले जाऊँगा, और फिर देखूँगा कि तू कब तक
अपनी जिद पर कायम रहती है और शायद तुझे अभी शबू की शक्ति का पूरी तरह ज्ञान नहीं, और बड़े महाराज को छोड़कर कोई भी इस शहर में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और वो देर तक लाफजनी करता रहा और फिर उसने मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाकर ऐसी नाजीबा हरकतें शुरू कर दी जिनके लिए उसका मेरे करीब आना ज़रूरी नहीं था। देवी, मेरी देवी, वो नीम व आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने दोनों कान भी और कानों पर मैंने हाथ रख लिए थे कि उसकी मनहूस आवाज़ सुनाई ना दे। और वो मंजर इतना ही शर्मनाक और घिनौना था। और पहले भी उसने एक बार ऐसी ही घटिया हरकत की थी और तैश के मारे मेरे जिस्म में बिजलियां सी गर्दिश करने लगीं। और फिर इससे पहले कि मेरी आंखों से मौत की रोशनी निकल कर उसे जिंदा जला डालती, वो फरार हो गया। लेकिन इस वक्त वो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ बेगैरती का मुजाहरा कर रहा था। फिर मेरे जिस्म को झटका सा लगा और मैंने घबराकर आंखें खोल दी और मेरे दोनों हाथ भी उसकी झटके की वजह से कानों के ऊपर नहीं रहे थे। देवी, देवी, देख तो सही। और वो मुझसे मुखातब था और मैंने इस मर्तबा भी आंखें बंद कर लेना चाहीं मगर नाकाम रही। उस शैतान सिफत साधु ने बेहयाई का वो आखिरी नज़ारा देखने पर मुझे मजबूर कर दिया था। और कोई इतना घटिया और पस्त ज़हन का भी हो सकता है, और मेरे लिए ये पहला तजर्बा था। आदमी की बजाय वो मुझे इस वक्त जानवर मालूम हुआ और वो सिर्फ चंद ही अजियतनाक लम्हे थे जिन्होंने मेरे एहसास को शदीद मजरूह किया। और मैं किसी बुत की तरह पलके झपकाए बगैर एक की तरफ देखे जा रही थी। और कोठरी में कुछ देर शबू की हैवानी सांस गूंजते रहे और फिर दोबारा मेरे जिस्म को झटका लगा और मैं नडाल सी होकर चारपाई पर गिर पड़ी। और मैंने देखा कि अब तीनों हिसार मेरे गिर्द मोहित थे। मैं अब जा रहा हूं देवी, कल सुबह आऊंगा। और वो अब अपने फूले हुए सांसों पर काबू पा चुका था। और कल रात तू इसी शहर में नहीं होगी। रुक जा शबू, मैं एकदम बोल उठी। अब क्यों रोकती है देवी, अब क्या फ़ायदा? मैं तुझसे सुलह करना चाहती हूँ। मैंने अपने दिल पर इंतहाई जबर करके बोली, सुलह? और तू इतनी जल्दी मुझसे सुलह पर राजी हो गई? और वो हंसने लगा, शैतानी हंसी। और अब तेरा कोई चलतर नहीं चलेगा। तू मेरी बात तो सुन ले, मानना ना मानना तेरे इख्तियार में है। और मसलते वक़्त के तहत मैंने अपने लिए हत्तल मकान नरमी पैदा कर ली। और मैं सुन रहा हूँ देवी, बोल क्या कहना है? तुझसे चंद सवाल करना चाहती हूँ और तूने अगर उनके सही जवाब दे दिए तो फिर मैंने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। फिर तू राज़ी हो जाएगी, यही कहना चाहती है ना? और मैंने कुछ कहे बगैर इकरार में सर हिलाना चाहा मगर यह मुमकिन ना हुआ। और वह मेरी ही तरफ देख रहा था, तो मैंने पलकें इकरार में झुका दी। तेरे हर सवाल का जवाब देने पर आमादा हूँ, लेकिन मेरी शर्त भी वही है, पहले तुझे दर्शन कराने होंगे और उसी का समय भी बीत चुका है। इस समय ज़रूरत नहीं, कल सुबह मुमकिन है। जिस तरह अभी कुछ देर के लिए पहले मैंने सबद हसार हटा लिया था, सो कल सुबह भी ऐसा हो सकता है। पर तेरे सवालों का जवाब दर्शन कर लेने पर ही दूंगा। और उसकी हराम ज़दगी अपनी जगह बरकरार थी और मैंने इस मर्तबा बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और खामोश रही, वरना जी तो चाह रहा था कि उस कमीने को जिंदा ही जला डालूं। और दर्शन की वजाहत से वो पहले ही कर चुका था। सोच ले देवी, सारी रात पड़ी है और सुबह तुझे वादा खिलाफी की सज़ा भी देनी है। और मैंने क्या वादा खिलाफी की है और कोशिश के बावजूद मैं चुप न रह सकी? यही देवी कि तूने मेरी दासी बनकर जीवन बताने का फैसला किया था और फिर ज़रा ही देर बाद वादा खिलाफी पर उतर आई और मुझे गालियां बकने लगी। मगर ये क्यों भूल रहा है कि तू भी तो कमीनगी पर उतर आया था। तू जिससे कमीनगी कह रही है देवी, मैं उसी को सच्चा प्यार समझता हूँ। मगर ज़रूरी तो नहीं कि जो तू समझे वही मैं भी समझूं। और तन के बिना मन कुछ नहीं होता देवी। तू एक बार तन की पुकार सुन तो सही, तेरे मन में ठंडक पड़ जाएगी और तेरी बेअक्ल आत्मा शांत हो जाएगी। और फिर यही कि शबू कि तू जिससे कमीना और जलील कहती है तुझे अच्छा लगेगा, पर अभी ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। गया जी चल कर समझ में आएगी। गया जी, मैं हैरत से बोली, हाँ गया जी, वो एक तीर्थ स्थान का है और मैं तुझे यहाँ से वही ले जाऊँगा और वहाँ मुझे बड़े महाराज का कोई खटका नहीं होगा। उसने जवाब दिया, तू जो गुण बन के रहेगी और मेरी जोगन और मैं तेरा जोगी। क्या तू समझता है कि बड़े महाराज को यह खबर नहीं होगी कि तू मुझे यहाँ से ले उड़ा है? खैर, हो भी सकती है और नहीं भी। तू इन चक्रों में ना पड़। यह मेरा और बड़े महाराज का मामला है और वो मेरे पिता समान है। जब उन्हें यह मालूम होगा कि मैंने तुझे अपनी जोगन बना लिया है और तू अब उनके काबिल नहीं रही तो वो मुझे माफ़ भी कर सकते हैं। वो बोला और फिर लालटेन उठाकर चल दिया।
और फिर लानती शबू चला गया और मैं देर तक अपनी बेबसी पर गौर करती रही और ये भी सोचती रही कि सुबह जब शहजाद और मेरे दूसरे मुलाजमीन मुझे ख्वाबगाह में नहीं पाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी। और उसी सोचो विचार के साथ बार बार मुझे शबू की ये धमकी भी याद आ रही थी कि कल सुबह वो मुझे वादा खिलाफी की सज़ा भी देगा और ये सज़ा किस नौइयत की होगी और मेरे लिए समझना मुश्किल था। मालूम नहीं कब मेरी पलकें बूझल होने लगी और फिर मेरी आँख खुल गई, फिर मेरी आंख लग गई और दूसरे रोज सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने शबू को चारपाई के करीब खड़े हुए पाया। वो आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में जाने क्या पड़ रहा था और रोशन हसार अब भी मेरे गिर्द कायम था। शबू के कांधे पर हस्बे मामूल झोली पड़ी थी, अलबत्ता चिमटा हाथ में नहीं था और गुज़श्ता रात भी उसके पास चिमटा नजर नहीं आया। सहरे अफसू के बारे में अब मुझे भी बहुत कुछ मालूम था कि मेरे अंदाजे के मुताबिक शबू इस वक्त किसी मंत्र का जाप कर रहा था और मुसलमान जिस तरह मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ते हैं हिंदू उसी तरह मंत्रों का जाप करते हैं। फ़र्क सिर्फ मस्बत और मनफी का है। वज़ाइफ खुद को या किसी शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी पढ़े जाते हैं जिन्हें रहमानी वज़ाइफ कहा जाता है और इसके अलावा दुश्मनों के शर से महफूज रहने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भी मुख्तलिफ अमल हैं और इनका अनहसार अमल की नीयत और तसव्वुर खैर व शर पर है और वह कौन सी राह इख्तियार करता है। सिफली अलूम का ताल्लुक उन्हीं मंत्रों से है जिनके ज़रिए किसी पर जादू किया जाए। मंत्र सहर जादू या अफसों को कहते हैं और मंत्र पहनने वाला अगर खुलवत में ना हो तो अपने जहन को यकसोई के लिए आंखें बंद कर लेता है और मंत्र उन मखसूस अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है जिनके ज़रिए किसी का दिल मोहने, उसे काबू में करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पढ़ा जाए और जाप वजीफ़े को कहते हैं। और मंत्र के दौरान जो अल्फाज अदा किए जाते हैं बुलंद या धीमी आवाज़ में उन्हें आंचर यानी जादू के बोल कहा जाता है और जंतर के मानी तावीज़ के हैं, मगर जंतर मंत्र अस्तलाहन झाड़ फूंक के मानियों में इस्तेमाल होता है और हिंदू अपनी इबादत के दौरान में जो कुछ पढ़ते हैं वो मंत्र नहीं अश्लोक कहलाते हैं और अश्लोक किसी नज़म, शेर या बैत या दोहे को कहते हैं जिसमें खाल के हकीकी की हम्दो सना की जाए। और शबू को इस वक्त आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते देखकर ये सारी बातें मेरे जहन में ताज़ा हो गईं। बदी का वो हरकारा यकीनन कोई मंत्र ही पढ़ रहा था और ये मंत्र वो किस गर्ज से पढ़ रहा था मुझे उस पर अभी ये नहीं खुला और उसके बावजूद मुझे यकीन था कि शबू का मकसद नेक नहीं हो सकता और मेरे नज़दीक वो मुजस्समे शर था, बदी था। और मुझे हैरत इस बात पर थी कि शर के ख़िलाफ़ खैर की कुव्वतें अब तक मेरे अंदर बेदार नहीं हुई। शायद ये मेरी आजमाइश का वक़्त था और मैं इसीलिए ज़्यादा खौफज़दा और हरासा नहीं थी कि मुझे खैर की कुव्वतों पर मुकम्मल यकीन और भरोसा था। और मुझे अब तक जो तजर्बात हुए उनका निचोड़ यही था कि वक्ती तौर पर शर का गलबा तो हो गया मगर आखिरी फ़तेह खैर ही की हुई और आखिरी फ़तेह ही तो असल फ़तेह है। उसी यकीन ने मुझे उस वक़्त भी मायूस ना होने दिया जब मैं शबू के मुकाबले में कतई बेबस थी और उसने मुझे अपनी शैतानी कुव्वतों के हिसार में ले रखा था और अब किसी नए हरबे की तैयारी कर रहा था और मेरी निगाहें उसी के मनहूस चेहरे पर जमी हुई थीं कि मैंने उसे आंखें खोलते देखा और फिर उसने अपने कांधे पर पड़ी हुई झोली में हाथ डाल दिया। झोली से मैंने शबू को मिट्टी का एक पुतला निकालते देखा और फिर मुझे उसके हाथ में बड़ी सी एक सुई नजर आई और उसने 3 मरतबा हिसार के अंदर फूंक मारी और फिर मिट्टी के उस पुतले पर हाथ फेरा और उसी के साथ मेरे सारे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई और मैं एकदम उछल कर बैठ गई। हैरत अंगेज तौर पर मेरा जिस्म अब बेहस या शल नहीं रहा था और किसी औरत से मुशाबा मिट्टी के इस पुतले के जिस हाथ पर शबू हाथ फेरता मुझे अपने जिस्म के उस हिस्से पर उसके हाथ का लमस महसूस हुआ और मेरे लिए ये बड़ा अनोखा और हैरान कुन तजर्बा था। और शबू अपनी शैतानी हरकत में मसरूफ़ था और मेरा चेहरा या शायद शर्म से सुर्ख होता जा रहा था और पुतले के मखसूस हिस्से पर हाथ फेरते हुए उसने शैतानी अंदाज में मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फिर उसने कुछ पढ़कर पुतले पर भी 3 मरतबा फूंके मारी और मेरी जनब देख कर ज़ोर से हंस पड़ा। उसने जो मंत्र पढ़ा था गालबन अपनी तकमील का आखिरी मराहल तय कर चुका था।
देवी, उसने अचानक मुझे मुखातब किया। मैंने जंतर का जाप करके तेरी आत्मा के 2 हिस्से कर दिए हैं। तेरी आत्मा का आधा हिस्सा उस पुतले में बंद है। सो जो आधा हिस्सा महसूस करेगा वही दूसरे आधे हिस्से को महसूस होगा। झूठ बोलता है तू। मैं खौफजदा होकर चीख उठी। रूह को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। इस लानती की बातें वाकई घबरा देने वाली थी। तो फिर अभी किस लिए लजा रही है देवी? बोल, क्या तूने मेरे हाथ का लमस अपने बदन पर महसूस नहीं किया? और तू अगर मुझे झूठा समझ रही है तो फिर तुझे यही तजर्बा कराता हूँ। और ये कहकर वो फिर पुतले से खेलने लगा। बस कर कमीने, बस कर। पुतले के साथ उसने एक ऐसी हरकत कर दी कि मैं खुद पर भी काबू नहीं पा सकी। और तू जब तक मेरे मंत्र की सच्चाई का एतराफ़ नहीं करेगी, मैं तेरे साथ यही खेल खेलता रहूँगा। और वो अपनी हरकतों से बाज ना आया। अभी तो इब्तिदा है। ये सुई देख रही है और मैं इससे तेरे बदन को छीदूंगा और तू चीखेगी। याद कर देवी कि कल रात मैंने तुझसे कहा था कि तुझे तेरी वादा खिलाफी की सज़ा दूंगा। और फिर भला तू सज़ा से कैसे बच सकती है? और इस समय तेरी मौत और ज़िंदगी मेरे हाथ में है। और मैं चाहूँ तो तेरी दोनों टांगें पकड़कर तुझे चीर दूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए कि देवी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका पर ये अत्याचार कैसे कर सकता है? सुन देवी कि तेरा शबू मुर्दार खोर नहीं, वरना तू जब तुझे बेहोश की हालत में उठाकर लाया उसी समय तेरी चाहत का कर्ज उतार देता। परंतु मैं ऐसे मिलन को मिलन नहीं जानता। तन और मन एक हो तो मिलन होता है, वरना पाप है। और तू जब तक तेरी आत्मा मुझे स्वीकार नहीं कर लेगी, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तेरी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी शबू, और तू यही हसरत लिए एक दिन अपने ही गुनाहों की आग में जल मरेगा। मैंने नफरत व हकारत से कहा। और शबू को झुकाना आता है देवी। तू खुद मेरे चरणों पर झुकेगी और मिलन को कहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं तेरे इकरार के इंतज़ार पर राज़ी हूँ। और मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक नहीं झुकती और कब तक अपना तन और आत्मा को सजाएं झेलने पर आमादा रखती है। सो आज कल रात की वादा खिलाफी की जुर्म में सजा भुगत, और तेरी चीखें सुनकर मुझे खुशी होगी देवी। ये कहते ही शबू ने नरम मिट्टी के पुतले को अपने बाएं हाथ में ले लिया और सुई अब उसके सीधे हाथ में थी। और मैंने उसने पुतले के एक बाजू में सुई की नोक उतारते देखा और अपने बाएं बाजू में मुझे शदीद तकलीफ महसूस हुई और मैंने अपने दोनों होंठ सख्ती से भींच लिए और मैं चीख कर उसे खुद पर हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अच्छा तो फिर ये ले। शबू ने बारी बारी पुतले के होंठों को निशाना बनाया और मेरे मुंह से सिसकी निकल गई और वो हंस पड़ा। और फिर उसने पुतले के जिस्म को सुई सी जगह से जगह जगह छेदना शुरू कर दिया और मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देने लगी। चीख देवी चीख। वो चीखा और पुतले के सीने में तकरीबन आधी सुई उतार दी। मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी और अब उसने पुतले की रानों और जिस्म के निचले हिस्से को तख्ता मश्क बना रखा था और मैं तड़पती रही, चीखती रही और उसके कह के कोठरी में गूंजते रहे। इसी दौरान भी वो मुझसे बार बार इकरार मोहब्बत करने के लिए कह रहा था, नहीं नहीं, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। और शदीद अजियत सहने के बावजूद मेरा जवाब यही था, और मैं तेरी नफरत को एक रोज़ मोहब्बत में बदल दूंगा। वो कहता और मुझ पर मजीद जुल्म करने लगा और उसके जुल्म का जरिया वही मिट्टी का नरम पुतला था और वो मेरे सब्र और हौसले का इम्तहान ले रहा था। और इससे पहले मैंने कभी इतनी अजियत बर्दाश्त नहीं की थी और चीखते चीखते मैं नडाल होने लगी। करीब था कि मैं अपने होशो हवास से खो बैठती कि जैसे मेरे सारे वजूद में जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई और मैंने अजीम मुहिम्मन की कहना खजीरा की खुशबू कोठरी में महसूस कर ली। और शबू मट्टी के जिस पुतले को अपने हाथ में लिए हुए था जैसे किसी नादीदा वजूद ने उससे छीन लिया। कौन है तू? शबू चीख उठा और मिट्टी का वो पुतला फिजा में बुलंद हुआ और फिर कोठरी के खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। और शबू पुतले को देखता रह गया और मेरे गिर्द शबू ने जो हिसार खींचा था वो गायब हो गए और उसी के साथ तेज कड़क सी सुनाई दी जैसे कहीं बिजली गिरी हो। और शबू पूरे कद से जमीन पर आ रहा, वो कोठरी के फर्श पर पड़ा हुआ और इस तरह हाथ पांव मिला रहा था जैसे उसे कोई सुझाई ना दे रहा हो। और गहरे पानी में डूबने से पहले जिस तरह कोई हाथ पांव मारता है वही हालत इस वक्त शबू की थी। और इन्हीं लम्हात में खजीरा की खुशबू को मैंने खुद के इंतहाई करीब महसूस किया। और शबू ने शैतानी अमल के जरिए मुझे जिस शदीद अजियत में मुब्तला किया था उसकी वजह से मेरा जिस्म जैसे फोड़ा बना हुआ था। और खजीरा की खुशबू करीब आई तो मैंने अपने जिस्म में अजीब सी ठंडक और राहत महसूस की और मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे बदन से सारी तकलीफ खींच रहा हो और मैं चंद ही लम्हों में खुद को पहले जैसा महसूस करने लगी।
پھر ادھر میں اٹھ کر بیٹھی اور خجیرہ کی خوشبو کا لمس محسوس ہوا۔ ادھر شبو اچھل کر کوٹری کے دروازے کی طرف بھاگا اور میں نے اس پر جست لگائی، لیکن اس وقت تک وہ کوٹری سے نکل چکا تھا اور اس کے باوجود میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ رک جا شبو، اور میں نے اسے برابر والی کوٹری کے دروازے سے نکلتے دیکھ لیا تھا، اور موت جس کے تعاقب میں ہو وہ بھلا کہاں رکتا ہے۔ اور اس نے بھاگتے بھاگتے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر بلا کی وحشت برس رہی تھی، اور وہ کوٹریاں دریا کے کنارے بنی ہوئی تھی، اور وہاں سے کالی گھاٹ کی آبادی کچھ دور تھی، اور کوٹری سے باہر آتے ہی میری پہلی نظر اسی طرف اٹھی اور کوٹری سے باہر آتے ہی میری پہلی نظر اسی طرف اٹھی کہ دور ہی سے کالی مائی کے قدیم مندر کا اونچا کلش دکھائی دے رہا تھا، اور شبو اسی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیر زمین پر نہ ٹک رہے ہوں، اور میرا اس کا درمیانی فاصلہ لمحہ بے لمحہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اور دریا کے کنارے نرم ریت پر دوڑتے ہوئے مجھے دشواری پیش آئی، اور شبو کو شاید ریت پر دوڑنے کی مشق تھی۔ کیا یہ کمینہ بچ کر نکل جائے گا؟ اور میں نے دوڑتے ہوئے بڑے دکھ سے سوچا، اور اسی کے ساتھ میرے سارے جسم میں بجلیاں سی کوندنے لگی، اور شبو ابھی تک میری نگاہ کی دسترس میں تھا۔ اور پھر معلوم نہیں دوڑتے دوڑتے اچانک شبو کو کیا سوجی، اس نے تیزی کے ساتھ اپنا رخ بدلا، اور آبادی کی بجائے اب اس نے دریا کی سمت زرکند بھری، اور ادھر بجلیوں کی گردش میری دونوں آنکھوں میں مرکوز ہوئی، اور ادھر شبو نے جے درگاہ مائی کا نعرہ بلند کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میری آنکھوں سے موت کی روشنی نکل کر پانی کی سطح پر ٹھیک اس جگہ پڑی جہاں شبو ڈوبا تھا، اور میں نے دریا کے پانی کو کھولتے دیکھا، اور پھر میری آنکھوں سے نکلنے والی روشنی دوبارہ میری آنکھوں میں سما گئی، اور بھاگتے ہوئے اب میں اس جگہ تک پہنچ چکی تھی، اور میں نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے دریا کی سطح پر نگاہیں جما دی۔ پانی کی سطح دور دور تک مجھے پرسکون دکھائی دی، اور میرے وجود میں گردش کرتی ہوئی بجلیاں اب تھم چکی تھیں، اور شبو اس طرح غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا، اور یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ زندہ بچ گیا۔ اور میں دریا ہگلی کے کنارے کھڑی وہی سوچ رہی تھی کہ اس شیطان کو یقیناً کسی طرح خطرے کی خبر ہو جاتی ہے، ورنہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ عین وقت پر غائب ہو جائے۔ زعیم جیسا ساحر جب موت کی روشنی سے نچ نہیں بڑھ سکا، اور اس کی پر اسرار بلائیں جب سوکھی لکڑی کی طرح جل گئی، تو شبو کس شمار قطار میں تھا، اور وہ صرف اس لیے زندہ بچ گیا کہ خطرے سے پہلے اس نے دونوں مرتبہ راہ فرار اختیار کر لی، اور مجھے اس کے فرار ہونے پر دکھ تھا، لیکن اس دکھ کا مداوع فی الحال ناممکن تھا، اور میں یہی سوچ کر بوجھل قدموں سے آبادی کی سمت بڑھ گئی۔ اس وقت صبح کے 7 بجے ہوں گے جب میں کالی گھاٹ کے ٹرام ڈپو تک پہنچی، اور پھر میں دھرم تلے کے لیے ٹرام میں بیٹھ گئی۔ میں شب خوابی کے لباس میں تھی، مگر میرے پاس چھوٹا سا پاکڑ پرس موجود تھا، اور ٹرام کنڈکٹر میری طرف آیا تو میں نے گاؤن کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پرس نکال کر ٹکٹ لے لیا، اور اگر مجھے چھوٹا پاکڑ پرس رکھنے کی عادت نہ ہوتی تو کالی گھاٹ سے لوٹتے ہوئے یقیناً پریشانی ہوتی، اور میرے پیروں میں چپل یا سینڈل بھی نہیں تھے، مگر اس طرف اب تک کسی نے دھیان نہیں دیا، اور صبح ہی صبح کا وقت تھا، اس لیے ٹرام میں زیادہ رش نہیں تھا۔ میں بہرحال کسی دشواری کے بغیر دھرم تلے پہنچ گئی، اور میں اس دوران بہت کچھ سو چکی تھی، اور جس پر مجھے کوٹھی پہنچ کر عمل کرنا تھا۔ میں 8:15 بجے کے قریب اپنی کوٹھی کے پھاٹک پر دستک دے رہی تھی، اور نریندرا نے پھاٹک کھولنے سے پہلے باہر جھانک کر دیکھا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے پھاٹک کھولتے ہوئے ہکلا کر کہا، میم آپ باہر کیسے چلا آیا؟ نریندرا کا یہ سوال مجھے کھلا تو صحیح، مگر میں کوئی جواب دیے بغیر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور راہداری سے گزر کر میں سیدھی صحن میں پہنچی، اور باتھ روم کا رخ کرتے ہوئے شیتل کو آواز دی جو رحیم کے ساتھ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ شیتل میرے کمرے سے تولیہ اور چپل لے آ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اچھا میم، جواب میں شیتل کی آواز سنائی دی، اور میں اس وقت اپنے پیر دھو رہی تھی جو ریت میں لت پت ہو رہے تھے، اور شہزاد اس وقت شاید اپنے کمرے میں تھا، اور ولیم حسب معمول ناشتہ کر کے سودا سلف لینے چلا گیا۔ آؤ شہزاد بیٹھو، میں نے سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، اور میں تم کو ہی بلوانے والی تھی، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم الجھے ہوئے کیوں ہو؟ خاتون، آج صبح جب میں صحن میں پہنچا تو عقبی دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی، شہزاد نے بتایا۔ میں نے طویل سانس لیا اور میری ایک الجھن ختم ہو گئی۔ تو میں نے اس سے سوال کیا،
میں سمجھا کہ شاید رات کو سونے سے پہلے نریندرا نے عقبی دروازہ چیک نہیں کیا ہوگا، اور سب میں نے کسی سے کچھ کہے بغیر کنڈی ڈال دی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے نریندرا نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کہیں باہر سے آئی ہیں، اور اس وقت میں اپنے کمرے میں لباس تبدیل کر رہا تھا۔ اور یہ کہہ کر شہزاد سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے دانستہ انجان بن کر کہا۔ میں دراصل وہ گڑبڑا گیا۔ دراصل عقبی دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی، اور معاف کیجیے گا، اور میں نے آپ کی خواب گاہ کا دروازہ کھول کر دیکھا تو آپ وہاں، میرا مطلب ہے کہ یہاں نہیں تھیں۔ اور پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہر ہے خاتون کہ آپ کی طرف سے فکر مند ہو گیا، مگر میں نے کسی اور کو کچھ نہیں بتایا کہ خواہ مخواہ اور وہ شیتل کو ذرا سی دیر میں شور مچا دیتی ہے، اور لباس تبدیل کر کے میں آپ کی تلاش میں جانے والا تھا کہ مجھے آپ کی آواز سنائی دی اور تمہاری جان میں جان آئی نا۔ جی ہاں خاتون، شہزاد کے بیان کی روشنی میں مجھے ایک کہانی ترتیب دیتے ہوئے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ تم لوگ آخر ذرا سی باتوں پر اس قدر کیوں گھبرا جاتے ہو؟ آج صبح 5:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی، اور سحر خیزی کے لیے میرا جی چاہا تو میں اٹھ گئی، اور تم سب لوگ سو رہے تھے، اور میں نے سوچا تمہاری نیند کیوں خراب کروں، اس لیے عقبی دروازہ کھول کر نکل گئی، اور لوٹ کر آئی تو عقبی دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے پھاٹک پر دستک دینا پڑی۔ اتنی سی بات تھی جس کا تم نے فسانہ بنا لیا۔ بات یہ ہے خاتون کہ گزشتہ دنوں اس سادھو کی وجہ سے جو غیر معمولی واقعات پیش آتے رہے ہیں، انہی کی بنا پر فکر ہو جاتی ہے۔ اور شہزاد نے صفائی پیش کی۔ لعنت پڑو اس سادھو پر، اور جو کہہ رہی ہوں وہ غور سے سنو، اور میں یہ کوٹھی تمہارے نام کر رہی ہوں۔ جی شہزاد حیران رہ گیا۔ مگر کیوں خاتون؟ تمہارے سوال کا جواب بھی دوں گی، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ دھرم تلے کے علاوہ کہیں اور تم کوئی اتنا بڑا مکان خرید سکتے ہو جہاں اس کوٹھی کا تمام فرنیچر اور کتابوں کی الماریاں بآسانی رکھی جا سکیں؟ میں نے دریافت کیا، اور میری بات سن کر شہزاد کچھ دیر خاموش رہا، اور پھر بولا، جی ہاں ممکن ہے۔ پارس سرکس کے علاقے میں میرے کچھ عزیز بھی رہتے ہیں اور دوست بھی، وہاں کوئی مکان آسانی سے مل سکتا ہے۔ وہ علاقہ دھرم تلے کی طرح زیادہ مہنگا بھی نہیں۔ لیکن خاتون کوئی سوال نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی، اور میں جو کہہ رہی ہوں سنتے جاؤ۔ جی بہتر، اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ تمہیں یہ کوٹھی فروخت کر کے پارک سرکس کے علاقے میں جلد از جلد کوئی مکان خریدنا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے وہاں شفٹ ہو جانا ہے، سمجھ گئے؟ اور میں آج شام تک چلی جاؤں گی، مگر اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ کورٹ چلنا ہے تاکہ اس کوٹھی کے مالکانہ حقوق تمہارے نام ہو سکیں۔ پارک سرکس میں بھی تم جو نیا مکان خریدو گے اپنے ہی نام سے خریدنا۔ اور تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سمجھ رہا ہوں خاتون، لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں، اور یہاں کیا پریشانی ہے، اور آپ شام کو کہاں جا رہی ہیں؟ تمہارے آخری سوال کا جواب تو فی الحال میں نہیں دے سکتی، البتہ پہلے 2 سوالوں کے جواب دے سکتی ہوں۔ اور میں نے یہ کہہ کر طویل سانس لیا، اور پھر کہا، میرا خیال ہے شہزاد کہ اتنا اندازہ تو تم نے بھی لگا لیا کہ کچھ لوگ بلا سبب مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور انہی میں وہ لعنتی سادھو بھی ہے، اور یہاں کی سکونت ترک کرنے کی اصل وجہ یہی ہے، مگر تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، اور یہ تمام باتیں صرف میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے۔ یہاں تم نے جن لوگوں کو ملازم رکھا تھا ان کے بارے میں تمہیں کو فیصلہ کرنا ہے، اور میں صرف شیتل کی سفارش کروں گی کہ اسے جواب نہ دینا، اور باقی اس کے علاوہ تمہیں یہ کوٹھی بیچ کر ایک نیا مکان خریدنے کے سلسلے میں حتی المکان رازداری سے کام لینا ہے، اور کوشش کرنا کہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کوٹھی کے بیچنے کے بعد تم نے کہاں نیا مکان خریدا ہے، اور اس سلسلے میں تم ملازمین کو بھی زبان بند رکھنے کی تاکید کر سکتے ہو، وہ کسی اجنبی کو کچھ نہ بتائیں، اور یہاں سے شفٹنگ کی وجہ ملازمین سے تم وہی بیان کر سکتے ہو جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ اس کی ایک اور بہتر صورت بھی ہو سکتی ہے خاتون، اور میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا ہوں۔ اس کی آواز میں دبا دبا سا جوش تھا، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی اس میں اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جلد بازی میں یہ کوٹھی بیچنے سے اس کی مناسب رقم نہیں ملے گی، اور میرا مشورہ ہے کہ پہلے کرائے پر
किराए पर पार्क सर्कस ही के इलाके में कोई मकान ले लिया जाए और यहाँ से सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद हमें कोठी बेचने की इतनी जल्दी नहीं होगी और ना ही हमें वहाँ नया मकान खरीदने में ज़्यादा दुश्वारी होगी और आप भी नया मकान देखकर इत्मीनान इसकी ज़रूरत नहीं। मैं बोल उठी, तुम्हारा इत्मीनान मेरे लिए काफ़ी है और फिर ये कि मैं चंद रोज़ के लिए ये शहर छोड़कर जा रही हूँ और मैं यहाँ नहीं होंगी और सब कुछ तुम्ही को करना है। लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि कोठी बेचने के बाद नया मकान कहाँ खरीदा गया और अब कब तक लौट आएंगी और मेरी वापसी जल्दी भी हो सकती है और उसमें देर भी लग सकती है। और रहा ये कि मुझे नए मकान के बारे में किस तरह मालूम होगा तो ये कोई मसला नहीं, लेकिन खातून किस तरह मैं समझ नहीं सका। समझ जाओगे, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिलहाल तुम जाओ और मुझे लिबास तब्दील करने दो, मैं आती हूं अभी। और फिर शहजाद उठकर चला गया और मैं लिबास तब्दील करने गई और उस रोज दोपहर से कुछ पहले ही हम दोनों कोठी वापस आ गए और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट से लौटकर मैं शहजाद के साथ पार्क सर्कस चली गई थी और वहां उसके कई अजीज़ों की सकूनत थी और शहजाद ने उनसे मेरी मुलाकात करा दी। उसके अलावा अपने एक करीबी दोस्त आफ्ताब से भी मिला दिया। वो जुमे का दिन था, इसलिए आफ्ताब घर पर ही था और जुमे के रोज़ वो छुट्टी करता था। शहजाद पहले भी मुझसे उसका तज़किरा कर चुका था कि आफ्ताब किंग स्ट्रीट में चश्मे की एक दुकान पर मुलाजिम था। दोपहर का खाना खाकर मैंने कुछ देर आराम किया और फिर शहजाद को अपने कमरे में बुलवा लिया। तुम एहतियातन ये रकम अपने पास रख लो, क्या खबर मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें क्या ज़रूरत पेश आ जाए। मैंने अपने पर्स से नोटों के गुड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। मगर खातून, ये तो बहुत ज़्यादा हैं और मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। रख लो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 हैं और अगर मुझे वापसी में देर हो गई तो मुलाजमीन की तनख्वाह तुम कहाँ से दोगे। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते ही तो सबको तनख्वाह दी है और फिर ये कि मेरे पास भी खासे पैसे हैं जिनका आपने कभी हिसाब नहीं लिया। और उसने नोटों की गुड्डी ले ली। कितने होंगे, मैंने मुस्कुराकर पूछा। 3-4 हज़ार तो होंगे ही, उसने बताया। और तो वो भी अपने पास रखो, अभी तो पूरा महीना पड़ा है और तनख्वाहों के अलावा घर के खर्चे के लिए भी तो तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। मगर आप हिसाब तो ले लें, मैं हिसाब की कॉपी लेकर आता हूं। और वो ये कहकर उठने लगा। बैठ जाओ, तुमने फारसी की एक मसल शायद नहीं सुनी, हिसाब दस्तर साल दर दर्द, हिसाब दोस्तां दरे दिल, यानी दोस्तों का हिसाब दिल में होता है। और अब तुम टहल जाओ और मेरे लिए शीतल से उम्दा सी काफ़ी भिजवा दो और मुझे अभी सपना सामान सफ़र भी बांधना है। और फिर कुछ देर आराम करने के बाद एयर बैग कंधे से लटकाए और सूट के दाएं हाथ में उठाए मैं अपनी ख्वाबगाह से निकल आई। और शहजाद गालबन मेरे तमाम मुलाजमीन को बता चुका था कि मैं कुछ अरसे के लिए कहीं जा रही हूँ, इसलिए वो सभी सहन में मुझे अपने मुंतज़र मिले और उनमें शहजाद भी था। और विलियम ने आगे बढ़कर मेरे हाथ से सूट केस लेना चाहा तो मैंने कहा, रहने दो, तुम ऐसा करो कि हावड़ा रेलवे स्टेशन तक के लिए एक टैक्सी ले आओ। और विलियम असबात में सर हिलाकर चला गया और मैंने आगे बढ़कर बरामदे में बिछी हुई आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई और सूट केस मैंने कुर्सी के पास ही रख लिया और फिर कांधे से एयर बैग भी उतार दिया। और इस वक्त अजीब सोगवारी का समा था। तुम लोग आखिर इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, मैं हंसकर बोली। मुझे तो तुम लोगों को देखकर यूं लग रहा है जैसे ससुराल विदा होकर जा रही हूं। और ये बात नहीं है मेम, शीतल बोली। फिर क्या बात है, कुछ फूटो तो सही मुंह से, जभी तो मालूम होगा मुझे। हमने शहजाद मियाँ से पूछा था कि मेम कब वापस आएंगी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। और रहीम बोल उठा, लहजा शिकायती सा था। शहजाद को कुछ खबर होती तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिलता ना, तो फिर तुम मेम आप ही बता दें। देखो, बात यह है कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, मैंने संजीदगी से बताया। अभी मुझे खुद अंदाज़ा नहीं कि कब तक वापस आ सकूंगी और शहजाद को मैंने तमाम ज़रूरी हदायत दे दी हैं और मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें शहजाद के कहने पर चलना है। ज़रूरी घरेलू अखराजात और तनख्वाह जिस तरह तुम्हें पहले मिलती थी मिलती रहेगी और पहले भी शहजाद ही की ये जिम्मेदारी थी और आइंदा भी ऐसा ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि शहजाद से तुम्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं होगी। सूटकेस और एयर बैग मैंने टैक्सी की पिछली नशस्त पर ही रखवा लिया और फिर खुद भी पीछे ही बैठ गई। और टैक्सी चलने से पहले मैंने गेट पर खड़े हुए अपने तमाम मुलाजमीन को देखा और रुखसती अंदाज में हाथ हिलाया। और उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि दोबारा फिर कभी ये चेहरे देख भी सकूंगी या नहीं। और ज़िंदगी की भीड़ में अक्सर चेहरे इसी तरह तो गुम हो जाते हैं। और जवाब में उन सब ने भी हाथ मिलाए और टैक्सी आगे बढ़ गई।
चौरंगी से गुजरकर मेरी टैक्सी लोअर चीपुर रोड पर पहुंच गई और मैंने एक और टैक्सी को अपने ताक़ुब में देखा और मेरा माथा ठंक गया। ट्राम डिपो के सामने से गुजरते हुए मेरी नज़र पहली बार उस टैक्सी पर पड़ी और मैं समझी थी कि चौरंगी के बाद वो किसी तरह मुड़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और वह मसलसल मेरी टैक्सी के पीछे लगी हुई थी और दरमियानी फासला भी ज़्यादा नहीं था और या तो ताक़ुब करने वाला बड़ा अनाड़ी था या फिर उससे ये परवाह नहीं थी कि मुझे ताक़ुब किए जाने का इल्म हो जाएगा। डलहौजी स्क्वायर वाले चौराहे तक आते आते मैंने टैक्सी वाले को मुखातब किया, टैक्सी एक तरफ रोक लो, पन मेम शाब अव्वल तो हमको भूला मेम हावड़ा स्टेशन, उधर भी चलेंगे, पहले तुम कुछ देर टैक्सी रोक लो। और मैंने अल्फाज दानिस्ता बंगला जुबान में अदा किए थे क्योंकि टैक्सी वाला मुझे बंगाली ही मालूम हुआ था। बालू मेम साहब, वो खुश होकर बोला और टैक्सी सड़क के किनारे रोक ली और पीछे आने वाली टैक्सी इस वक्त तक बिल्कुल करीब आ चुकी थी और मैं जैसे ही मुड़ी उस टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर एक दराज कद शख्स को उतरते देखा और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं उसे पहचान गई। वो राजा उस्ताद था और मुझे इस वक्त राजा उस्ताद की मुदाखलत गिरा तो गुजरी मगर अपनी नागवारी जाहिर ना होने दी और उसने ख्वाम ख्वाम मेरी राह खोटी की। हर चंद के मेरा अरवाहा हावड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन जाने का नहीं था बल्कि मैं रास्ते में ही रुक जाती, मगर ये बात मेरे गुमान में भी नहीं थी कि उससे पहले ही राजा उस्ताद से मुठभेड़ हो जाएगी। और अपने मुलाजिम विलियम से मैंने स्टेशन के लिए टैक्सी इस वजह से मंगवाई थी कि ये जाहिर हो सके कि वाकई मैं कलकत्ते से कहीं और जा रही हूँ। धर्मतले से हावड़ा स्टेशन तक जाने के लिए टैक्सी उस जगह से ज़रूर गुजरती जहां मुझे हकीकतन जाना था और मैं वहां टैक्सी रुकवा कर उतर जाती और मेरी मंजिल दरअसल मूसा सेठ का मुसाफिर खाना था। यहीं चंद रोज़ गुजार कर मैं आइंदा के लिए कोई लाहे अमल मुरतब करना चाहती थी और जब तक मैं मेकअप करना न सीख जाती मेरी कहीं मुस्तकिल सकूनत ला हासिल ही थी। और ये वही मुसाफिर खाना था कि जहाँ तक खजीरा ने मेरी रहनुमाई की थी और जहाँ मेरी मुलाकात शहजाद से हुई थी। अपनी कोठी से रवानगी के बाद मैं पूरी तरह चौकन्ना थी और मैं अपने इर्द गिर्द से कतई गाफिल नहीं थी और यही वजह थी कि जल्द ही मुझे अपने ताक़ुब का एहसास हो गया था और हुक्मरान के किसी पालतू कुत्ते को मैं अपने पीछे लगाए मूसा सेठ के मुसाफिर खाने तक नहीं ले जाना चाहती थी और मैंने अपनी टैक्सी इसीलिए रुकवाई कि ताक़ुब करने वाली टैक्सी आगे निकल जाए या अगर वो भी कुछ फासले पर रुक जाए तो मैं ताक़ुब करने वाले से निपट सकूं। और पालतू कुत्तों के साथ मैं अब किसी रियायत की रोदार नहीं थी। लेकिन राजा उस्ताद के चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वह अब अपनी टैक्सी से उतर कर करीब आ चुका था और अखलाकन मैं भी अपनी टैक्सी से उतर गई। ये अय्याशियां हो रही हैं उस्ताद, मैंने उसे मुस्कुराकर मुखातब किया। टैक्सियों में घुमा जा रहा है आजकल, बस रहने दो रानी, तुम बड़े बेवफा हो, चुपके से निकली जा रही हो। वो तो मेरी नजर पड़ गई और टैक्सी करके भाग उठा और तुम्हारे पीछे, वरना तुम हावड़ा पहुंच कर ही दम लेती। तुमसे किसने कह दिया उस्ताद कि मैं चुपके से निकली जा रही थी और ये कि हावड़े जा रही हूँ। अब इतना अंधा भी नहीं हूँ और टैक्सी में सूटकेस रख कर जाहिर है कि तुम घूमने फिरने तो नहीं जा रही और बस तुमसे इतनी सी दरख्वास्त थी कि देखो रानी, बम्बई जाने से पहले एक बार ज़रूर मिल लेना, मगर तुम हम जैसे छोटे आदमियों को कहाँ घास डालती हो और इतने दिन कलकत्ता में रही और राजा को ज़रा भी खिदमत का मौका नहीं दिया। इससे तो मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं अगर कभी बम्बई आऊँ तो तुमसे मिलने की कोशिश ना करूँ। और राजा उस्ताद बिल्कुल बच्चों की तरह मुझसे रूठ गया। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, तुम भी कमाल हो उस्ताद, खुद ही जाने क्या क्या फर्ज कर लेते हो। अरे तुम अगर बंबई आओगे तो रानी के अड्डे पर ही ठहरोगे और तुमने ये क्या बात कही कि मैं इसलिए नहीं मिली कि बंबई आऊं तो ये न यहाँ ना ठहरूं, और वो बंबई है कलकत्ता नहीं। तुम वहीं आकर कहीं और ठहर के तो देखो, तेरे ही दिन उठवा लूंगी तुम्हें। और मैंने ये सब कुछ राजा उस्ताद की खुशनुदी के लिए कहा था और पहली मुलाकात में मुझे वो बंबई की कोई जुराइम पेशा और समझा था जिसका नाम रानी था और मैं उस वक्त वही किरदार निभा रही थी। मुझे तो तुम उठवा लेने का दावा कर रही हो और खुद एक दिन मेरे यहाँ नहीं ठहरी और ये भी खूब रही भाई। वो मुंह बनाकर कहने लगा, कोई जगह है तुम्हारे पास मुझे ठहराने के लिए? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम कह कर तो देखती। तो अब क्या कह रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ गया? अभी तो मुझे खासे दिन तुम्हारे शहर में गुजारने हैं और ये सामान
یہ تو کیا تم واقعی ہاوڑہ اسٹیشن نہیں جا رہی؟ نہیں استاد، میں تو کچھ روز کے لیے موسیٰ سیٹھ کے مسافر خانے میں رہنے جا رہی تھی، اور میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کیونکہ اب اپنا ارادہ بدل چکی تھی اور میں موسیٰ سیٹھ کے مسافر خانے میں ٹھہرتی، چند روز راجہ استاد کی مہمان بن کر رہتی، بات ایک ہی تھی۔ رانی تم اور مسافر خانہ؟ حیرت ہو رہی ہے یہ سن کر وہ دھیمی آواز میں بولا، لگتا ہے وہ کام ہو گیا ہے جس کے لیے تم یہاں آئی تھی، لیکن یہ کہ دوسرا کام ابھی باقی ہے۔ اور میں نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا، سمجھ گیا میں کہ چند روز تم شاید روپوش رہنا چاہتی ہو۔ اس نے سرگوشی کی، استاد تم تو واقعی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہو، بس اب غصو مت بہت زیادہ اور میری ٹیکسی میں آ جاؤ اور میں تمہارا سوٹ کیس۔ ایسا کرو استاد کہ اپنے ٹیکسی والے کو فارغ کر کے تم بھی اسی ٹیکسی میں آ جاؤ، خواہ مخواہ سامان اٹھانا پڑے گا، اور میں دراصل تمہاری طرف اس لیے نہیں آئی کہ کہیں تم بھی میرے ساتھ تمبوکا نہ ہو جاؤ۔ میں نے ہنس کر کہا، اور راجہ استاد پر ہاتھ ڈالنے والا ابھی اس کلکتے میں تو پیدا نہیں ہوا نہیں، اور دھرم تلا تک میرا علاقہ ہے، اور میرے علاقے میں مائی کے لال کسی میں بھی کوئی دم نہیں کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔